Hello and welcome as friends. First of all, I welcome to all of you in our channel Competitive Spy, the elite way of learning. In today's lecture, we are going to discuss the very important topic and very important concept of perfect square and square root of any number. With the help of some basic important as well as simple tricks and simple approach, we can calculate easily any perfect square or square root of any huge number और small number. सो एस्पेरेंट्स आज हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर का, उसको हम कैसे इजीली विथिन फ्यू सेकंड्स परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे. ठीक है एस्पेरेंट्स, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं और स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं. परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बोलूँगा परफेक्ट स्क्वायर का जो सिंबल होता है उसको कैसे रिटर्न करते हैं हम. वी हैव रिटन द परफेक्ट स्क्वायर इन दैट वेरी फॉर्म. इन दैट प्लेस वी आर गोइंग टू पुट एनी वैल्यू. इफ आई पुट x value here, then it is the perfect square of x square. Means in place of x, if there is a x square, x means we have to put any value here. If I put value 1 2 3 4 up to infinity, we can put any value in the place of x. If there is value of 2 9, for example, if there is a value of 3, here is we put x in place of x, where we put the value of 3. 3 square means the perfect of square means we have to multiply square means 2 times. We have multiplied 3 times, that is 9. And in that place if it is 4 means 4 square. So perfect square means we have to multiply 4 into 2 times. 4 into 4 is equal to 16. So in that way you understand what the perfect square means and how to write the perfect square and what perfect square is used for. Now let's move to the square root. Square root is denoted with that symbol or written with the help of that symbol in that form. Here is the root and this is the x. X may be 1 2 3 4. So x कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है. Difference is only between perfect square and square root is that is the square root का अपना वैल्यू होता है. यहाँ पे square root है, square root has its own value. If it is x and square root is always having its value 1 by 2. Remember always square root is having value 1 by 2. In place if I am going to put the number 4 and we put the square root, means square root of 4 is equal to, we have going to put the value of square root means 1 by 2 and 2 is the perfect square of 2. 4 का 2 perfect square क्या है 2 square into में क्या है root का value 1 by 2. So we are going to cut 2 and 2, that is the square root is 2. 4 का square root क्या है 2. So in that way you check out the difference between perfect square and square root. Now let us move towards another concept, how to find out the perfect square of any huge number with the help of short trick within few seconds. Okay, so let us start. First I will rub this place. Okay, so let us start. First point, you must remember the square roots up to 9, so that you can use them for to calculate the square root perfect square of any huge number. First you must remember the square root up to 9 digits, 9 numbers 1 to 9. Okay, and you must remember that 1 square is equal to 1. Okay, and 2 square किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, एंड 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के बराबर होता है, और 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 के बराबर होता है, और 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है, और 6 स्क्वायर किसके बराबर होता है 36 के बराबर होता है, 7 स्क्वायर किसके बराबर होता है
49 के बराबर होता है। इतना तो सबको पता ही होगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। 9 तक याद रखना, 9 तक याद रख लिया आपने तो बाकी आपको आगे बहुत इजी होने वाला है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यहाँ पे है 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर किसके बराबर होता है 81। So guys, you must remember these 9 important squares. So आपने इतनी याद रख लिया तो बस आपके लिए अब इजी होने वाला है। ठीक है, आप कोई भी नंबर, कितना भी डिजिट का नंबर हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है गाइज, तो अभी बेसिक्स में आपने सीखा कि एक्स परफेक्ट स्क्वायर को कैसे रिटर्न करते हैं, स्क्वायर रूट को कैसे रिटर्न करते हैं, रूट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है गाइज, दोनों रिलेटेड है, आपस में बहुत ही रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखते हैं हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आपने याद रख लिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी नंबर के का लास्ट डिजिट अगर एंड होता है किससे 1, 4, 5 या 6 या 9 से, तो ये 5 नंबर्स है 1, 4, 5, 6, 9। जिस भी नंबर के लास्ट का डिजिट 1, 4, 5 या 6, 9 होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन 5 के अलावा कोई और डिजिट मिला आपको एंड में तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसकी एंड में 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा, देन यू विल नेवर फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। इस बात का खूब ख्याल रखना आपको। अगर आपने एग्ज़ाम में लास्ट के एंड में देखा इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और किसी का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे वो लास्ट 1, इसके लास्ट में 1 है और किसके लास्ट में, इसके लास्ट में 1 है। तो देखेंगे 1 किस किस के लास्ट में आता है, जो ये 1 है वो किस किस के लास्ट में आता है, किसके लास्ट में आता है 1 में आता है और 9 में आता है। इनको ऐड करेंगे 9 और 1 कितना होता है 10। सो आ गए यहाँ पे 1। दूसरा क्या है 4, 4 किस किस के लास्ट में आता है 2 के आता है और किसके आता है 8 के आता है 8 में आता है ना लास्ट में इसके। 8 8 क्या होता है 64। ठीक है ना, सो इसमें भी 8 के लास्ट में आता है। इसकी ब्यूटी देखिए 2 और 10, तो 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। सो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अब 5 है, 5 किसके लास्ट में, ओनली 5 के लास्ट में, 5 5 25, इसका एक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 6, 6 के किसके लास्ट में है, यहाँ पे 4 के लास्ट में और किसके लास्ट में 6 में है। 4 और 6 के लास्ट का डिजिट क्या है 6 है। 4 और 6 कितने होते हैं 10 होते हैं। हर जगह 10 10 आ रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। और 9 है, 9 किस किस के लास्ट में है, आप देखिए 3 के लास्ट में है और यहाँ पे है 7 के लास्ट में, 3 और 7 के लास्ट में 7 है। सो 3 और 7 कितने होते हैं 10 होते हैं। आपने देखा इस तरह के जो ये 5 नंबर्स है इनका परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल सकता है, और कोई नंबर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर मतलब अगर आपको कभी यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, वो आपको मिलेगा प्लस और माइनस में। ये आपको हमेशा 2 वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। मगर अगर आपको रूट का वैल्यू निकालना होगा फॉर एग्जांपल, वो आपको एक ही वैल्यू देगा, पॉजिटिव में वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, मगर इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन फाइनल आंसर पर आप कन्फ्यूज़ होते हो, वहाँ पर आप का आंसर रॉन्ग होता है। इस बात का एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, so let us find out how to find the square root of any big number. Let's take the example of 1 3 6 9. So first you need to check whether it is having a perfect square or not. It is the here is the last digit 9, so we will easily check out that it must have the perfect square. इसका perfect square बन सकता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे देखना। आपको ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है,
पहले आपको ये लास्ट के 2 डिजिट है ना 6 और 9, इनको सेपरेट करना है, मतलब इनको अलग करना है। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में बचते, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर बचे, 3 डिजिट का नंबर बचे, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं, बस आपको भी लास्ट के 2 डिजिट सेपरेट करना है। ये स्क्वायर रूट का रूल है, ठीक है। अब देखना है ये 9, इसका लास्ट डिजिट क्या है 9। अब देखना है 1 to 9 के लास्ट में किसके 9 आता है। अभी हमने देखा था 9 किसके लास्ट में आता है, एक तो आता है 3 के, एक तो आता है 7 के। 3 के आता है और आता है 7 के लास्ट में। बस अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, वो 13 है, बच गया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेना है, ठीक है। अब देखना है ये 13 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। 13 किस किस के स्क्वायर में आएगा, 2 या 3 के या 3 या 4 के, कौन से आएगा, ये आएगा 9 और 16 के बीच में। सो हो गया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में क्या आएगा 13। समझ में आ रहा है। 3 का स्क्वायर है 9, 16 और 9 के बीच में है ना 13। सो 3 और 4 इनमें से जो छोटा होगा वो आपको यहाँ पे लेना है, मिल गया आपको पहला वाला डिजिट, ठीक है। 3 और 4 में छोटा कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप वो है 3। अब एक और डिजिट यहाँ पे आएगा, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा। अब क्या करना है, इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 3 और 4 कितना होता है 12, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। एंड फाइनल स्टेप जो है, इस 12 को इस 13 के साथ कंपेयर करना है। अगर ये 12 इस 13 से बड़ा होगा तो हमें छोटा नंबर चूज़ करना पड़ेगा, इसमें से छोटा नंबर चूज़ करना पड़ेगा। अगर ये 12 इस 13 से बड़ा होगा तो हमें इससे छोटा नंबर चूज़ करना पड़ेगा। अगर ये 12 इस 13 से छोटा होगा तो हमें इसमें बड़ा नंबर चूज़ करना पड़ेगा। अब देखेंगे ये 12 13 से छोटा है कि बड़ा है, लेस है कि ग्रेटर है, ये तो लेस देन 13 है। अगर छोटा है तो मैंने क्या बोला, बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है, इनमें बड़ा नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी छोटा है तो बड़ा नंबर सिलेक्ट करेंगे, वो क्या है 7। सो वी विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर 37। So this number is the perfect square of 37, and if this number is the perfect square of 37, now what is the square root of 1369? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो हमने देख लिया 37 का है, मगर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना, वो भी यही होगा 37। आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1369 आपको पता चल गया ये किसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 37 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रूट का वैल्यू क्या मैंने बोला आपको, वो होता है 1/2, क्या होता है 1/2। इसको कट करेंगे, सो इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया हमको 37। आए समझ में आपको, मतलब परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल। सो पहले इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कौन सी, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम एग्जांपल किसकी, हम लेते हैं एग्जांपल 1089। पहला सेटअप मैंने आपको जो बोला, ये लास्ट की 2 डिजिट है, इनको अलग करिए आप, 8 और 9 को अलग करिए आप। बस लास्ट के 2 डिजिट आपने अलग किए तो अब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। 1089 इनको मैंने अलग किया। अब देखना है ये 9 किस किस के लास्ट में आता है। 9 तो एक तो 3 के लास्ट में आता है, एक आता है 7 के लास्ट में, 3 और 7 के लास्ट में, 3 और 7 के लास्ट में। अभी इनको कुछ करना नहीं, अब देखना है लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पार्ट है, वो है 10, 2 डिजिट नंबर है। सो इसको देखेंगे 10 किस किस के स्क्वायर बीच में आता है, 3 और 4 के स्क्वायर में आएगा। 9 और 16 के बीच में ही आएगा ना, वो आएगा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में। सो मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, इन 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर में जो छोटा होगा उसको लेना है आपको, वो क्या है 3। तो यहाँ पे एक और नंबर आएगा, वो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या आएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए आप। 3 और 4 कितना होता है, 3 इंटू 4 क्या होता है, और मल्टीपल करके 12 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था आपको, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये नंबर देखना है इससे छोटा है तो बड़ा लेंगे, इनमें से बड़ा लेंगे। इस नंबर को इसके साथ कंपेयर करेंगे, बड़ा होगा तो छोटा लेंगे, ठीक है।
अभी देखते हैं 12 10 से बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। सो सिंपली अगर बड़ा है तो हम छोटा लेंगे तो उसका मतलब है इनमें से छोटा लेना है, वो 33 है। सो इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 33। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 33, तो स्क्वायर रूट इसका क्या स्क्वायर रूट क्या होगा, 1089 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सो आपको पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर इसका है, तो ओबियसली ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट भी इसका क्या होगा, 33। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। अब देखते हैं एक और एग्जांपल कैसे हम इसको विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व करेंगे। देखिए कितना बड़ा नंबर होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखते हैं हम 4 डिजिट वाला नंबर लेते हैं यहाँ पे, उसको भी सॉल्व कर पाएंगे हम कि नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ये फार्मूला वर्क करती है कि नहीं करती है। 1 2 5 4 and 4. First important point is you must separate these last two digits and check out which is the last digit of square. Here is the square having the last 4 digits, that is 2 square. 2 square के लास्ट में 4 है और किसके लास्ट में 4 है, 8 के लास्ट में है। 2 और 8 के लास्ट में 4 है। अब छोड़ दीजिए इन दो डिजिट को। अब देखिए पहले वाले डिजिट कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए, 1 2 5। ठीक है ना। अब देखना है 1 2 5 किसके बीच में आता है, कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। अभी तो हमने लिखा था 9 तक ही, अगर हम 9 से आगे भी जाएंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, इसके बाद 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। सो 1 2 1 और 12 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर होता है 1 4 4। सो इसके बीच में आएगा 1 2 5। सो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 11 और 12 में छोटा कौन सा है, 11। मैंने बोला था छोटा लेना है। यहाँ पे एक और नंबर आएगा, वो हम देखेंगे अब। उसके बाद मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप 11 और 12 को मल्टीपल करना है आपको। देखते हैं क्या आता है, वो आता है 132। 132 आ गए। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, शाबाश, इसको और इसको कंपेयर करना है। अगर 1 2 3 इससे बड़ा होगा तो छोटा नंबर लेंगे इनमें से, अगर ये छोटा होगा तो बड़ा लेंगे, अगर बड़ा होगा इससे तो छोटा लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं 1 2 3 5 क्या है, बड़ा है किससे, 1 2 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें इनमें से छोटा लेना पड़ेगा। सो हम 2 लेंगे। सो दिस नंबर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 112। इफ़ यू फाइंड द स्क्वायर रूट, अगर देखेंगे इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, 1 2 5 4 4 का स्क्वायर रूट क्या है इसका स्क्वायर रूट। आप बोलेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 112 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर और स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 112। सेम होता है इसका स्क्वायर रूट यही होगा। ठीक है ना। लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। दीज एग्जांपल्स आर वे गोइंग टू हेल्प यू वेरी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं तो आप बड़े से बड़े नंबर का परफेक्ट स्क्वायर विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कभी नंबर मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1926, इसके लास्ट दो डिजिट को सेपरेट करिए। 6 के लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में आता है, और किसके 6 के लास्ट में आता है 4 6। अब देखते हैं बचे कितने, लेफ्ट हैंड साइड में 12 नंबर है, ये किसके स्क्वायर बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। 4 और 9 के बीच में आएगा ना, नहीं सॉरी, 9 और 16 के बीच में आएगा, मीन्स 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में आएगा। सो वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 2, 3 एंड 4 के बीच में स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ेगा, वो क्या है हमारा 3 है। ठीक है, यहाँ पे एक और नंबर आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 एंड 4, मल्टीप्लाई देम। 3 एंड 4 कितना होता है, 12 होता है। नाउ वी हैव टू कंपेयर 12 दिस वन विथ दिस। नाउ हियर इज द important point that we get the equality। 12 के बराबर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना है कि हमें छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कभी इक्वलिटी में मिलेगा तो आपको बड़ा लेना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है,
वहाँ पे आपको इन दोनों में से बड़ा लेना है, ठीक है। जब इक्वलिटी में आएगा तो बड़ा लेने के वहाँ पे यहाँ पे हमें बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 लेंगे। सो आएगा 36 का परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर का बोलेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है इस नंबर का स्क्वायर रूट, वो है 36। वो सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 5625। ये भी एग्ज़ाम में आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट को सेपरेट किया, 5 लिख के लास्ट में आता है, ये तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। 5 सिर्फ 5 के लास्ट में आता है और किसी के लास्ट में नहीं आता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाता है एक नंबर, 5 तो आपको डायरेक्ट ही मिल गया। नेक्स्ट नंबर आपको अब ढूंढना है, ठीक है। अब सिर्फ 56 को कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। 56 को कंपेयर करना है यहाँ पे। अब देखना आपको 56 किसके बीच में आता है, 56 किसके बीच में आएगा आपको, शाबाश। 56 आपको किसके बीच में आएगा, ये है यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 64, 8 का स्क्वायर, इसके बीच में आएगा 56। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, मतलब कौन सा नंबर है इन दोनों के छोटे में। यहाँ पे आपको इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक नंबर सीधे ही मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो हम जाते थे, यहाँ पे 2 नंबर थे तो तब उनमें सिलेक्ट करना पड़ता था, अभी हमको एक नंबर पहले ही मिल गया। अब इन दोनों में से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, छोटा नंबर कौन सा है इनमें, कौन सा है छोटा नंबर, वो है 7, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये लास्ट नंबर बन जाता है 7, पहला वाला नंबर इस टाइम पहला वाला नंबर बन जाएगा, सो हो जाएगा 75। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एग्जाम्पल वेरी क्लियरली। these examples are going to help you these examples are very helpful in examination to save your precious time. So with that we are going to conclude this topic. I hope you understand each and every concept. So with that, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।